past, right? Till now? Yes, sir. Yes, sir. Simple present, simple past, simple future. Then we have finished present continuous, past continuous, and future continuous. All right? Future continuous. Now, Yes, sir. very good. Now we are going to start a new topic, and that's what tenses again. So this week we are going to go for tenses, and we're going to finish at least our remaining 6 tenses more. 6 to 7 tenses which are remaining mandatory tenses. We're going to complete them to go for the next one. So now today I'm going to start a new topic, and that's what present perfect tense. One of the highly used tense in English. People are using it generally. In daily life, they're using it. Present perfect tense. How many of you know the rule of present perfect tense, and when do we use it? Who can tell me? थोड़ा पहले बता, मतलब आपने जो बोले अभी वो आप ही से बोलो ना, मेरा कनेक्शन बंद हो गया था तो रीस्टार्ट किया मैंने अभी मीटिंग. We are starting a new tense today, and that's what present perfect tense. And now present perfect tense is in front of you, and I'm asking you a question. What do you think that when do we use present perfect tense? Who can tell me when do we use present perfect tense? The work Yes. which has done in past, Okay. but And we don't know complete हो जाता है. exactly which timing it's done. Okay. What else? जो वर्क है, एक्शन है, वो कंप्लीट हो जाता है सर इसमें. प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है. अच्छा, और क्या होता है? आई हैव फिनिश्ड. और क्या होता है? यस, जल्दी प्लीज, जल्दी बोलिए प्लीज. Yes. When do we use present perfect tense? Tell me. I'm just looking for a book, but I'm not getting it. Just a minute, please. Just a minute, because I have to give you some examples so you will never ever forget it. Okay? एक्शन पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट में खत्म होता है, राइट? अच्छा, ऐसा भी होता है? क्या बात है? सही है सर या गलत? और फ्यूचर में होता है? Okay. So here we go. Today I'm going to show you something great here about present perfect tense. ये tense मैंने एक कॉलेज में दिया था, SNDT कॉलेज. आप लोगों ने मेरा कभी DP देखा रहेगा आप लोगों ने. I went to SNDT college long time back. Yes, sir. And just for the example, I taught them present perfect tense. और वहाँ पे मैं टीचर्स लोगों को दे रहा था लेक्चर, और वो टीचर लोग मेरे अम्मी से भी बड़े थे, मेरे अब्बा अम्मी से बड़े थे वो लोग. As you can see them in the picture as well. Now, today I'm going to show you what exactly present perfect tense is. Present perfect tense is what? An action in the past. The rule is there, an action in the past, and the result is now in the present. This is called present perfect tense. When something has done in the past and the result is now in the present, result is now in the present, and the result is now in the present, we call it present perfect tense. Listen to me carefully. An action in the past and the result is now in the present, we call it present perfect tense. Now what exactly present perfect tense is what? कोई चीज मैंने past में किया और रिजल्ट मेरे पास में अभी है सामने, उसको हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मैं ऐसा कर चुका हूँ, ऐसा हो चुका है, मैं ऐसा कर चुका हूँ, ऐसा हो चुका है, कर चुका हूँ, हो चुका है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. पॉइंट नंबर 1, आप लोगों के सामने मैंने थोड़ी देर पहले पानी पिया था, याद आ रहा है? Yes, sir. यस सर. नहीं पिया था? Yes, sir. ये थे. जिनको नहीं पता है, मैंने भी उनके सामने भी पानी पिया. मैंने पानी पिया मैंने 5 सेकंड पहले. करेक्ट? पानी पीने का जो एक्शन था 5 सेकंड पहले हुआ. पानी कहाँ है? पेट में. पेट में है मेरे. An action they passed and the result is now. This is called present perfect tense. समझा? एक्शन पास्ट में हुआ था, रिजल्ट आपके सामने है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मैं पानी पी चुका हूँ, एक्शन फिनिश हो गई है, रिजल्ट आपके सामने है, मेरे पेट में है. बाथरूम में नहीं गया अभी तक क्या मैं?
सेकेंड थिंग, ये मैंने कब लिखा आपके सामने? 2 मिनट पहले, थोड़ी देर पहले. Yes. यस 2 सर, मिनट कुछ टाइम पहले. पास्ट एंड द रिजल्ट इज नाउ। क्या आपके स्क्रीन पर अभी भी आप लोग को दिख रहा है ये? Yes. इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एन एक्शन इन द पास्ट एंड द रिजल्ट इज नाउ। एन एक्शन इन द पास्ट एंड द रिजल्ट इज नाउ। एक्शन कोई पास्ट में हुई है और रिजल्ट आपके सामने है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरी बात, अब आप लोग को ये पेज दिख रहा है, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपके सामने देने के लिए जा रहा हूँ। हैव अ लुक हियर। आर यू एबल टू सी द पेज? Yes, sir. यस सर. नहीं है फिलहाल में, ये मिल गया। Yes, sir. फट गया हूँ। An action in the past and the result is now. An action in the past and the result is now. Action past में हुआ था फटने का, रिजल्ट आपके सामने है अभी भी। कब फाड़ा मैंने? यस सर. 15 सेकंड पहले फाड़ा था। आपके सामने है अभी भी? Yes, यस, sir. आपके सामने है, आपकी आंखें चालू है और आप इसको देख रहे हैं बराबर। An action in the past and the result is now. An action in the past and the result is now. एक्शन पास्ट में हुआ था फटने का और आपके सामने रिजल्ट अभी भी है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जब तक ये रहेगा तब तक आप इसको देख देख के यही सीखते रहना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये फटा था 19 अक्टूबर 2020 में। आप इसको 50 साल के बाद में भी जब उठा के देखेंगे तो ऐसे ही मिलेगा आपको ये, अगर आपने इसके अंदर उंगली नहीं किया तो आप इसको देखेंगे और देखते के साथ एक ही बात सीखेंगे। An action in the past Present. and the result is now. Someone has turned the page. किसी ने पेज फाड़ चुका है। मीनिंग सुनो, किसी ने पेज फाड़ चुका है। An action in the past and the result is now. पास्ट में एक्शन हुआ था और रिजल्ट में भी आपके सामने रिजल्ट अभी भी आपके सामने है, फटा हुआ दिख रहा है कि आपको रिजल्ट? ये रिजल्ट है आपके सामने फटा हुआ। फाड़ने की एक्शन पहले हुई थी, रिजल्ट आपके सामने है, इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। एन एक्शन इन द पास्ट एंड द रिजल्ट इज नाउ। एन एक्शन इन द पास्ट एंड द रिजल्ट इज नाउ। एक्शन पास्ट में हुआ था, रिजल्ट आपके सामने, इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गेटिंग इट? मैंने पानी पिया था 5 मिनट पहले, पानी मेरे पेट में है। एन एक्शन इन द पास्ट एंड द रिजल्ट इज नाउ। आई हैव ड्रंक वाटर, मैं पानी पी चुका हूँ। मैंने लिखा था 10 मिनट पहले, ये लिखने के एक्शन Yes, sir. पास्ट में, आपके सामने अभी रिजल्ट है। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं लिख चुका हूँ। इलेक्शन में जीत कर आया था कौन 2019 में? कौन? बीजेपी। So BJP. BJP has won the election. बीजेपी इलेक्शन जीत चुका है। An action in the past and the result is now. क्या रिजल्ट है? अभी भी है कि नहीं? गद्दी पे बैठा हुआ है कि नहीं वो? यस सर. रूलिंग Sure. yes, so say an action in the past and the result is now. So इसको बोलते हैं present perfect tense. Now what is the rule for present perfect tense? Have or has plus verb third form. यही simple सा tense का formula है वहाँ पर, ये आप लोग यहाँ Have पर has देख। plus verb third form. Now present perfect tense, what is the formula? An action in the past and the result is now. An action in the past with the result is now. एक्शन कोई पास्ट में हुआ है और उसका रिजल्ट अभी आप लोग के सामने है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हाट इज द फॉर्मूला? हैव और हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव और हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिए, नाउन, वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस विद नाउन। नाउन मींस नेम ऑफ अ पर्सन, place, animal, things and ideas, plus Pronoun. or pronoun I, he, she, it, you, we, they. We have 7 pronouns in English. All right, noun or yes. pronoun plus have or has, have or has, दोनों में से कुछ लगेगा, plus verb, verb का कौन सा भाई? थर्ड Third फॉर्म लगेगा, verb का लगेगा थर्ड फॉर्म। Third form. गेटिंग इट? प्लस कॉन्टेक्स्ट। इतना ही रूल है, बाकी कुछ उंगली करना नहीं रूल के अंदर, यही मेन, इतना ही रूल है, इसके अलावा रूल कुछ भी नहीं है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउन और प्रोनाउन हैव और हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। अब हैव किसके लिए लगता है? किसके लिए लगता है भाई हैव? आई यू वी दे। We. करेक्ट, आई यू वी दे के लिए क्या लगेगा? हैव। Have लगेगा प्लूरल के लिए. करेक्ट, के लिए has लगेगा सिंगुलर के लिए. सिंपल सी बात है। ही शीट के लिए लगेगा हैज, आई यू वी दे के लिए लगेगा हैव। भूलना Have. नहीं। So now we are going to make sentences with our system, and that's what? Statement, question, and negative. Statement, question, and negative we are going to make sentences with. So noun or pronoun plus have or has plus verb third form.
now an action in the past and the result is now. action past में हुआ है, result आपके सामने है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? present perfect tense. अब जैसे कि ये मैंने पेज फाड़ा हूँ भाई, ये मैंने पेज फाड़ा, आपके सामने अभी भी है रिजल्ट इसका कि फटा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा? I have turned the page. So noun और pronoun, मैं pronoun ले रहा हूँ I plus have or has, क्या लेना चाहिए? Have. Good. I have plus verb का थर्ड फॉर्म. अब ये फाड़ा मैंने, उसका verb का थर्ड फॉर्म क्या है? टॉन, करेक्ट. फर्स्ट फॉर्म क्या है उसका? टीयर, करेक्ट. टीयर का थर्ड फॉर्म है, टीयर का थर्ड फॉर्म है टॉन. आई हैव टर्न प्लस कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट में क्या पढ़ा भाई मैंने? आई हैव टर्न द पेज. मैं पेज फाड़ चुका हूँ, फाड़ चुका हूँ, कर चुका हूँ. एक्शन में का रिजल्ट मेरे सामने है, मैं ये एक्शन कर चुका हूँ. एन एक्शन इन द पास्ट एंड द रिजल्ट इज नाउ. आई हैव ड्रंक वाटर, मैं पानी पी चुका हूँ. I have written on the screen, मैं स्क्रीन पर लिख चुका हूँ. An action in the past and the result is now. So I have turned the page. Question? Have I turned the Correct. Have I turned the page? क्या मैं पेज फाड़ चुका हूँ? And negative, I haven't. haven't turned the page. ठीक है. अभी ऐसे क्यों दिखा रहा है? ये इसके एड़े चाले हैं, ये उसको टर्न को टर्न करना चाह रहा है वो, तो इसके लिए मैं गूगल का ज्यादा भरोसा करता नहीं हूँ. नेक्स्ट वन. I'm making sentence with he she. या ये था कि आई हैव रोट, ये एक सेंटेंस हो गया नॉर्मल. गलत हो गया वो पहली बात तो. I have written होना चाहिए. रिटर्न थर्ड फॉर्म है क्या उसका? हाँ. राइट, रोट रिटर्न. अच्छा जी फरमाइए. नहीं, हो गया, क्लियर हो गया है, वही थर्ड फॉर्म था ना उसका. चलो नाउ अब मैं सेंटेंस बना रहा हूँ ही के साथ में. नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन ही प्लस हैव और हैज, क्या लगना चाहिए? हैज. हैज. he has. He has प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. He has वर्ब थर्ड फॉर्म. He has राइट का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म? Written. He has written a letter. उसने एक लेटर लिख चुका है. क्वेश्चन? Has he Has he written a letter? Has he written a letter? क्या वो एक क्वेश्चन एक लेटर लिख चुका है? एंड नेगेटिव, He hasn't He hasn't written a letter. a letter. किसी को कुछ जलन कटन सुजन दुखन भाई किसी का कुछ है? में और सिंपल प्रेजेंट में क्या डिफरेंस हुआ फिर? ऐसा क्वेश्चन मेरे को चाहिए था. इसमें और सिंपल प्रेजेंट में डिफरेंस क्या होगा? ध्यान दीजिए मौजूद सामाइन हजरत, भाइयों बहनों, यहाँ पे ध्यान दीजिए. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसमें डिफरेंस ये हुआ मेरे भाई. I drank water last night और I drank water yesterday. ये इसके अंदर डिफरेंस है, आपके सामने है. कल जो मैंने पानी पिया था वो मेरे पेट में है क्या मेरे भाई? No, sir. नहीं. उसका रिजल्ट कहाँ है? कुंडवा की गलियों में होगा वो. उसका रिजल्ट ही नहीं है. जिस चीज का रिजल्ट सामने रहेगा उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा, वरना तो यूज होगा ही नहीं. समझा? Yes, sir. Sir, if we want to say that I have attended that meeting, so sir, but the result of that meeting is not now. अब देखो, अब वहां पर आप कैसे बोल सकती हैं आई हैव अटेंडेड दैट मीटिंग. अब यहाँ पे मैडम आइडिया के बारे में बात कर रही हैं. बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस मैडम ने दिया है, आई हैव अटेंडेड दैट मीटिंग. अब जैसे कि हम लोग बोलते हैं आई हैव डन माई ग्रेजुएशन और आई हैव डन माई कोर्स. मैं कोर्स कर चुका हूँ. रिजल्ट कहाँ है उसका? आपके दिमाग में. जो आपने सुना था आपके दिमाग में रहेगा, जो आपने देखा था आपके दिमाग में रहेगा, जो आपने ग्रेजुएशन किया उसका डिग्री हो सकती है, फिर उसका जो भी पढ़ा था अपने दिमाग में रहेगा. चीटिंग वगैरह जो भी किया था, डिटेक्शन वगैरह दिमाग में रहेंगे. वो आइडिया को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एन एक्शन इन द पास्ट एंड द रिजल्ट इज नाउ. रिजल्ट आपके सामने है, मैं ऐसा कर चुका हूँ, मतलब काम फिनिश हो चुका है और मुझे वो काम पूरी तरीके से मैं कर चुका हूँ. उसका कोई भी भाई एक्शन बचा हुआ नहीं है. We can also make these sentences in simple past, like I attended that meeting. करेक्ट. आई अटेंडेड, मैंने मीटिंग अटेंड किया था, किया Sir, था. in that situation, we can make the sentences in simple present and simple present perfect. In both. फॉर एग्जाम्पल
attended that meeting. I attended that meeting. Now, I have attended that meeting. Now, for example, madam went to her friends. And now she's asking, did you attend the meeting? Yeah, I have attended that meeting. ये देखो टिकट है मेरे पास में. तब आप बोल सकती हैं. और अगर आपके पास में टिकट नहीं तो आप बोल भी नहीं सकती फिर. सिंपल सी बात है. अब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नोट्स बनाए मीटिंग के उसमें से, राइट? यू हैव मेड योर ओन नोट्स एंड यू आर शोइंग टू दैट पर्सन, सी आई हैव अटेंडेड, आई हैव बॉट अ टिकट, आई हैव बॉट, आई हैव रिसीव्ड द पार्सल, मैं रिसीव कर चुका हूँ, आई हैव रिसीव्ड द पार्सल, मैं रिसीव कर चुका हूँ, पार्सल मेरे हाथ में, एंड एक्शन इन द पास्ट एंड द रिजल्ट इज नाउ. एंड आई रिसीव्ड अ पार्सल लास्ट नाइट, मैंने कल एक पार्सल मिला था, रिजल्ट कहाँ है मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, बट अगर मैं रिजल्ट आपके सामने बता रहा हूँ, सो आई हैव रिसीव्ड द पार्सल, ये है आपके सामने. सिंपल सा मैटर है, वहाँ पे रिजल्ट का मैटर करता है. ओके, रिजल्ट रहा तो परफेक्ट, अगर नहीं रहा तो सिंपल प्रेजेंट. करेक्ट, सिंपल सी बात है. Sir, I रिजल्ट have joined the class. करेक्ट, आई हैव जॉइन क्लासेस. अब मैडम जो बोल रही है देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई हैव जॉइन क्लासेस, करेक्ट, आई हैव जॉइन द क्लास, मैं क्लास ज्वाइन कर चुकी हूँ. रिजल्ट क्या है मैडम? आप अभी क्लास के अंदर हैं, दिख रहा है आपको? आप अभी मीटिंग के अंदर है, दिख रहा है आपको? मतलब ये उसका रिजल्ट हो गया. आई जॉइन दैट क्लासेस लॉन्ग टाइम अगो, सिंपल पास्ट टेंस में आ जाएगा ये. मैंने ये क्लास बहुत पहले ज्वाइन किया था. आई हैड ज्वाइन उससे भी पहले किया था. सिंपल. इंग्लिश बहुत ही इजी है भाइयों बहनों, एक और बात इसका याद रिजल्ट भी तो सर ये दिमाग में वाला रहेगा तो- हमारे. ये जो सेंटेंस था अभी का कि आई हैव जॉइंड था क्लासेस लॉन्ग टाइम अगो, आई हैड जॉइन आई हैड जॉइंड. पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसके बाद वाला टेंस है वो. उसका रिजल्ट भी तो अपने दिमाग में रहेगा ना सर. हाँ रहेगा ना. तो फिर वो उसको आप पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं बोल सकते, अपने आप प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं आई हैव जॉइन क्लासेस. अगर आप उसको नोट्स दिखा रहे हैं किसी अपने दोस्त को, तो सी आई हैव जॉइन क्लासेस, मैंने एक क्लास ज्वाइन कर चुका हूँ, हो चुका है मेरा क्लास वो. अच्छा, नॉर्मली बोल रहे तो आई हैड बोलेंगे, और अगर रिजल्ट दिखा रहे तो हाँ ठीक है. हाँ एग्जैक्टली, समझा. रिजल्ट बहुत मैटर करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, बस ज्यादा कुछ नहीं है. अगर रिजल्ट रिजल्ट नहीं रहा तो सर? तो सिंपल पास्ट में ढकेल देने का उसको. सिंपल. इंग्लिश का ये तो फंडा है कि आप एक टेंस को अलग अलग तरीकों से बोल सकते हैं इजीली. ये जिस तरह से अभी ये वाले टेंस का अपने नीचे ये लिखे ना, एक्शन जो पहले हो चुका है, एक्सप्लेनेशन, वैसा हर इसका देंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा जरा. एक्सप्लेनेशन, दिया ना डेफिनेशन. मैंने, बाकी टेंसेस का भी दिया हूँ. व्हेन समथिंग, ऐसा लिखा नहीं था नीचे उसके कुछ ऐसा, ऐसा सामने रहता ना थोड़ा समझ में आ जाता है कि हाँ. अब समझा मैं समझा. अब मैं भावना की बहन दोनों को समझ गया हूँ. सर एक समझा. सेंटेंस बनाओ ना इस पे जिसका रिजल्ट नहीं रहेगा प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू कॉलेज लास्ट वीक, मैं कॉलेज गया था लास्ट वीक, रिजल्ट ही नहीं है. अब फॉर एग्जाम्पल, आई हैड लंच यस्टरडे, मैंने कल खाना खाया था, रिजल्ट नहीं है उसका, तो ये सिंपल पास्ट है. सिंपल पास्ट है वो. और मैं कोई चीज को बता रहा हूँ, यस्टरडे आई हैव हैड लंच यस्टरडे, वो खाना अभी भी मेरे पेट में है तो, पर नहीं है वो. आई हैव हैड. Sir, if we know the timing, so then we can use simple past. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा जरूरी भी नहीं है. I ate food yesterday. So I'm describing the timing here. वेट अ मिनट, मैं आपको एक चीज दिखा ये देता हूँ. आई एट फूड यस्टरडे, ये भी सिंपल पास्ट ही हुआ ना. आई एट फूड यस्टरडे सिंपल पास्ट टेंस हुआ वो. चलो मैं आप लोग को डायरेक्टली एक झटके में एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको. पूरा जो है शायद कंसेप्ट मैं आपको नहीं दिखाना चाहता था ये, क्योंकि आप लोग और भी कंफ्यूज हो जाते थे, पर अभी फिलहाल मैं आप लोग जब इसके डीप में जा ही रहे हैं, आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, उसके ज़रिए जाएंगे हम लोग. प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट. ओके, ध्यान दीजिए. टॉम इज लुकिंग फॉर हिज की, ही कांट फाइंड इट, ही हैज लॉस्ट हिज की. एन एक्शन इन द पास्ट, लूजिंग का, और प्रेजेंट में वो ढूंढ रहा है, उसको मिल रही है क्या, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ही हैज लॉस्ट मतलब वो खो चुका है. एक्शन इन द पास्ट एंड द रिजल्ट इज नाउ. दिस मींस ही डजंट हैव दिस की नाउ. अब उसके पास में वो की नहीं है, वो खो चुका है, गुम गई है. अब देखो 10 मिनट के बाद में, नाउ टॉम हैज फाउंड हिज की, टॉम को मिल चुकी है, की को बता रहा है. टॉम हैज फाउंड हिज की, मुझे मिल चुकी है.
present perfect tense. He has it now. Okay, he has he lost his key? No, he has found it. Did he lose his key? Yes, he did. क्या उसकी चाबी घूमी थी क्या? तो घूमी थी, सिंपल पास्ट टेंस. ही लॉस्ट हिज की, सिंपल पास्ट. उसकी चाबी गुम गई, पर अभी ढूंढ रहा है क्या वो? नहीं, उसकी चाबी गुम गई, वो सिंपल पास्ट टेंस है. वो सिंपल पास्ट टेंस है. अब इसके नीचे इसने और भी दिया रहेगा. Past tense. The present perfect tense, something has happened and is a present tense. It was always tells us about the situation now. Tom has lost his key. He doesn't have his key now. So this is what called Tom doesn't have his key. अभी उसके पास में key नहीं है. He has lost it completely. This is simple, present perfect tense. The past simple is what something happened. Tells only about the past. Past में हुआ था, सिर्फ उतना बता रहा है. Present का कुछ लेना देना नहीं है. If somebody says Tom lost his key, this doesn't tell us whether he has the key now or not. It tells us that only he lost his key at home sometime in the past. कभी तो भी उसने कीज छोड़ दिया था, गुम गई थी उसकी, पर कब गुमी थी, अभी मिली क्या नहीं, उसको नहीं मिली क्या, क्या उसका कुछ लेना देना ही नहीं. इतना सिंपल टेंस है ये. For example, do not use the present perfect if the situation now is different. अगर सिचुएशन अगर अभी अलग है तो आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं कर सकते. वो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो. उसका मतलब ये है, वो बोल रहा है कि कोई चीज, अभी देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है. आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन. कब लिखा था मैंने? पास्ट में लिखा था. और वो लिखने के बारे में मैं प्रेजेंट में बता रहा हूँ कि मैंने लिख चुका हूँ, बराबर ना? तो पास्ट को मैं प्रेजेंट से मिला रहा हूँ. समझ में आ रहा है आपको? यस सर. इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. अब जब कोई चीज सिर्फ और सिर्फ मैं पास्ट के बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पास्ट के बारे में बता रहा हूँ, उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉलेज गया था, और अगर मैं बोल रहा हूँ मैं कॉलेज जाकर आ चुका हूँ, आई हैव गॉन टू कॉलेज, ये देखो ठप्पा लगा हुआ है कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड, तो हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. जब आप लोग दो सेंटेंसेस को जुड़ा रहे, दो टाइमिंग को जुड़ा रहे, प्रेजेंट को पास्ट के साथ में, तब आप लोग यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, वरना तो यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव गॉन अवे, they'll be back on Friday. वो यहाँ से जा चुके हैं और वो फ्राइडे के दिन आएंगे. वो यहाँ से जा चुके हैं, अभी तो यहाँ नहीं है ना, तो वो बोल रहा है अभी यहाँ से जा चुके हैं. वो प्रेजेंट को पास्ट के साथ में जोड़ रहा है. और they went, और वो चले गए, चले गए, वो सिंपल पास्ट टेंस हुआ. समझा अब? सर समझा? या फिर बोलते आई हैव अ शावर, तो शावर का जो रिजल्ट है वो कैसे पता चलेगा? ना 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 ना, अब वो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं. ये हैव अलग है, वो वाला हैव अलग है. ये हैव अलग है, ये जो ये रूल वाला हैव है, ये रूल वाला हैव, ये वो वाला हैव नहीं है. आपने अभी एक सेंटेंस सुना नहीं, जो मैंने अभी आपको सेंटेंस बोला था ना, आपने ध्यान नहीं दिया. शाकिर भाई ने रिपीट भी किया था. आई हैव हैड अ शावर. मैं नहा चुका हूँ, देखो मेरे बाल गीले हैं, देखो मैं दिख रहा हूँ एकदम क्लीन. इसको बोलते हैं आई हैव हैड अ शावर. मैं नहा चुका हूँ. Action in the past and the result is there now. यस. And I had a shower yesterday. उसका रिजल्ट बता रहा हूँ मैं अभी आपको. नो सर. ये कल मैंने बहुत काम करा, तो मैंने कल नहाया था, कल भी नहाया था मैं आज भी नहाया, पर आज के नहाने की मैं आपको बता रहा हूँ. सी द क्लीनलीनेस. समझा? ये बोलते हैं आई हैव हैड. तो मेरे भाई देखो यहाँ पर आई हैड, आई हैव, तो ये हैव जो है, ये जो टेंस का फॉर्मूला है उसका हैव है ये. और ये हैड कौन सा है? वर्ब वाला, वो थर्ड फॉर्म जो है वर्ब का. हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ना, जैसे कि यहाँ पर है आई हैव टर्न, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये वो वाला हैव था. समझा? ओके सर. हाँ सही है सर. हाँ, ऐसा है वो. या आप एक सेंटेंस दे सकते क्या, पास्ट, प्रेजेंट और कंटिन्यूअस कंटेन करता तीनों भी? मतलब पास्ट भी आता उसमें, चाइल्डहुड, फिर नहीं क्या, पास्ट, प्रेजेंट और कंटिन्यू फ्यूचर, ऐसे कौन से टेंस रहे? तीनों कंटेन करता है एक सेंटेंस, ऐसा कुछ? नहीं, मतलब बचपन से फिर जवानी में फिर बुढ़ापे में जा सकता है. अलग अलग सेंटेंस बना सकते, पर ऐसे कोई टेंस नहीं जो कि एक सेंटेंस के अंदर तीनों टेंस एक साथ में आए. टेंस नहीं, सेंटेंस, एक सेंटेंस में तीनों टेंसेस.
नहीं हो सकता ऐसा, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, एक सेंटेंस के अंदर तीनों टेंस नहीं आ सकते एक साथ, आएगा ही नहीं, गलत हो जाएगा मेरे भाई। पैराग्राफ। हाँ, पैराग्राफ के अंदर तो कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या है, कुछ भी अपने अपने दिल से कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए सिर्फ अब यहाँ पे, I went to his house but he I went to his house but he wasn't present there. Tomorrow I'll visit him again and will tell about you. बोल सकते हैं इसके अंदर। I went to Okay. his house. I went to, और जनरली आप जो बोलना चाह रहे हैं ना कि एक साथ में तीनों टेंसेस आने चाहिए, वो मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। Okay, sir. Okay guys, so this is it for today, and please keep on practicing at home your present perfect tense at home. Tomorrow we're going to have the practices of this one, and we're going to start a new tense once again tomorrow. All right? सर Inshallah. सर Yeah. ओपन में जरा डेफिनेशन दिखाओ जरा, शो करो। Will you And teach action. us gerund and infinitive? वो बुक दो ना जरा, आप भी जो ओपन करे थे ग्रामर वाली, मिल सकती क्या? देता हूँ मैं आप लोगों को, सेंड करता हूँ। या तो सिर्फ उसका एक पिक बता दो, मैं डाउनलोड मार देता उसको। नहीं, मैं आपको बुक सेंड कर देता हूँ, डोंट वरी। बुक थोड़ी टफ है वो, देखो, पर आप लोग मैं उससे सेंड नहीं, कर वो देता हूँ। टॉम का एग्जांपल अच्छा लगा, जरा समझ में आ गया फटक से। नहीं, बुक थोड़ी एडवांस लेवल की है, वो इंटरमीडिएट है। आप लोग देखो, मैं सेंड कर देता हूँ आप लोग को। यस, डन। और वो और Sir, सर will you पुरानी बुक give, भी सर। यस, can you give some overview about gerund and infinitive? बहुत लंबा टॉपिक है मैडम, वो बहुत लंबा टॉपिक है। जेरेंड इज अ वर्ब विच कंटेन्स आईएनजी इन इट। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, उसका इतना लंबा टॉपिक है वो। हैव अ लुक हियर, जेरेंड के बारे में आपको बताता हूँ मैं। देखो, वर्ब का जेरेंड हम लोगों के फाइल में है ऑलरेडी, बट आप उसके बारे में क्यों पूछ रही हैं, कुछ खास? Sir, you have asked question about it before some अरे time. वो सानिया मैडम ने बीच में एक Like चीज पूछे थे, देखो इंग्लिश गुरु वाले यूट्यूब चैनल का, वो अभी तक हुआ नहीं अपना। बताता हूँ, मैं बताता हूँ, उसका आंसर मिला है। मैं बोला ना आपको, आंसर मिला है मुझे उसका, मैं आपको बता देता हूँ उसका। वो मैं आपको कल बता दूंगा इंशाल्लाह, पूरा प्रूफ के साथ में। जेरेंड का बहुत लंबा टॉपिक है मैडम। और दूसरी बात कैसा है, देखो यहाँ पर है वर्ब, अब यहाँ पर आता है हमारा, कहाँ गया भाई वो जेरेंड, ये है। sometimes we use for Gerund is with a verb. ing, but Pardon? in gerund sometimes we use for with ing, but in gerund, do we have to use it or not? Absolutely, we have to see the definition of gerund. The gerund is what? Verbal noun, they ending with ing. For example, running is good, it is gerund. Teach me swimming, it is gerund. Teach me to swim, it is verb. ये इन्फिनिटिव और जेरेंड है। जेरेंड क्या होता है? एक नाउन होता है जिसके अंदर आईएनजी आता है। ये तो मैंने उस दिन क्वेश्चन पूछा था आप लोग को, आंसर मिला था क्या भाई किसी को? नहीं ना? कौन सा क्वेश्चन सर? और अतलू, कौन से क्वेश्चन बोले तो? ये तो पूछा था मैंने आपको उस दिन कि स्विमिंग वहां पर वर्ब है क्या नाउन है? याद आ रहा है कुछ? पार्किंग इज प्रोहिबिटेड वगैरह कुछ पूछा था मैंने ऐसा। Yes, sir. यस सर। यही तो पूछा था मैंने आप लोग को, कहाँ गया वो? पता नहीं, पता नहीं। देखो यहाँ पर पूछा था मैंने आपको, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, पार्किंग इज नॉट अलाउड। तो मैंने बोला था पार्किंग नाउन है, आप लोग बोले नहीं वर्ब है वो, इसको बोलते हैं जेरेंड। आई एम पार्किंग माई बाइक, ये वर्ब है, ये इन्फिनेटिव है मैम, इन्फिनेटिव के अंदर आईएनजी लगा है। डांसिंग, Sir, we can also say to park is not allowed.
हाँ वर्ब है वो इन्फिनिटिव फॉर्म में. Sir, gerund and infinitive are interchangeable. Like we can say. एक्चुअली जेरेंड जो होता है नाउन होता है वो विच इज एंडिंग विद आईएनजी. 2 मिनट. सर Okay, guys. मी नाउन, सर मी नाउन होता क्या कभी सेंटेंस में? प्रोनाउन है भाई मेरे को. नहीं होता ना, मतलब प्रोनाउन है प्रोनाउन वो. प्रोनाउन है लेकिन Sir, but we have 7 pronouns only. हाँ तो वो ऑब्जेक्टिवल प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव जिसको हम लोग बोलते हैं. प्रोनाउन का भी मैं आपको बता देता हूँ. देखो ये पूरा ग्रामर है. जाने ये का रहा प्रोनाउंस. कहाँ गया. मेरा भी क्वेश्चन है सर. जी जरूर साहब. बोलो सब बोलो. ये देखो पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं तो जिसके अंदर ऑब्जेक्ट में आता है वो. आई का प्रोनाउन होता है मी. दिख रहा है यहाँ पर. यस सर. आई का ऑब्जेक्ट होता है मी. सब्जेक्ट आई है तो उसका होता है मी. ही का होता है हिम. शी का होता है हर. वी का होता है अस. दे का होता है देम. Yes, sir. और ये देखो मैडम हाँ somebody anybody something anything no one none ये सब indefinite डिटर्मिनर्स हैं जो कि सिंगुलर होते हैं. सब सिंगुलर है ना सर ये? सब सिंगुलर है. ओके तो गाइस अभी एक साथ में 4 चीजों पे जंप मत कीजिए. पहले एक सीखिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह. मैं आप लोगों को बुक सेंड करता हूँ. उस बुक में भी थोड़ा पढ़िए. तो ज्यादा दिल पे नहीं लेना क्योंकि वो बुक में ज्यादा समझेगा. ऑलराइट. Yes. यस ओके हाँ सर सर बोलिए ना. 2 मिनट मेरा सर. बोलिए ना. मैं प्रैक्टिस तो कर रहा सर बट और कैसा करना चाहिए सर. रेगुलर सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा सर डे टू डे लाइफ के. तो उसके से क्या करना चाहिए कहीं की प्रैक्टिस करूँ सर. आपने सिंपल प्रेजेंट अपने टेंसेस वगैरह प्रैक्टिस किए थे आपके घर पर? हाँ सर उसको एक नोटबुक में लिख के निकाला सर 1 by 1 एकदम. नहीं नोट